जय हिंद, जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन में। आज का मेरा टॉपिक है लॉ ऑफ फ्रिक्शन और इसके बेस पे हम लोग सब लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन फ्रिक्शंस टॉपिक। लेट स्टार्ट। व्हाट इज द लॉ ऑफ फ्रिक्शन? लॉ ऑफ फ्रिक्शन basically divided into a two part. First one is law of friction is static law of friction and the dynamic law of friction. We know that what is the static friction. Static friction is the friction where the force of applied force and the friction force, the value of the applied force is less than the friction force, then the body is not move, and that type of the friction is known as static friction. So what is the law? First law is that force of friction always act in a opposite direction. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो एक्ट करेगा वो ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन पे एक्ट करेगा, सो दैट इन विच बॉडी टेंस टू मूव, इन विच द बॉडी टेंस टू मूव इफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वुड हैव बीन absent. The force of friction always act in the opposite. That is the first law. The force of friction is always act in the opposite direction in which the body tends to move if the force of friction would have been absent. The second word, the magnitude of the force of friction is exactly equal to the force. ये मैंने जस्ट कहा क्योंकि ये इक्वल होगा तभी बॉडी रेस्ट में होगी, which tends to move the body. तो magnitude of the force of the friction is exactly equal to the force. This is the second law, where the law of static friction. And the magnitude of the limiting force friction and its normal reaction between two surfaces is called constant. वो always constant, and that constant is known as coefficient of friction, जिसको मैं coefficient of friction की मतलब है नहीं. फर्स्ट वन इज दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन. ये मैं बता चुका हूं कि ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन पे वो लगेगा, तो ये एक लॉ है उसका, ये जिसको हमें नियम है. सेकेंड वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द force which is applied tends to move the body. And the second one is that the ratio of the limiting force of friction and the normal reaction is always constant, and that constant is called as mu. So it's mean the force of the friction is directly proportional to r. It's mean, so that's why this is called mu r. That constant is known as the proportionality constant is known as the mu, and it is called the coefficient of friction. The force of friction is independent of area of contact between the two surface. वही मैंने कहा कि ये independent है area of the contact of the surface. It is not depend on the area where the applied. It is depend कोई area पे नहीं depend कर रहा है. It is independent of the area of contact between the two surfaces. Force of friction is depend on the roughness of the area. If you are suppose, मैंने आपको एग्जांपल दिया था फर्स्ट वीडियो में कि टाइल्स है जहां पे स्लिप आप कर जाते हैं, लेकिन आप एक कच्चा मकान जो गांव में होता है वहां आप स्लिप नहीं करते, ड्यू टू द डिफरेंस ऑन द सरफेस. द सरफेस डिफरेंस है वहां पे, और सरफेस डिफरेंस क्या है कि दिस इज डिपेंड ऑन द सरफेस डिफरेंस, कि वहां पे स्मूथ सरफेसेस है, यहाँ पे रफ सरफेसेस है. तो डिपेंड ऑन द सरफेस, but it is not depend on the area of the contact between the two surfaces. वहां contact surface पे नहीं depend करेगी. So this is the law. What is the law of the dynamic friction or the kinetic friction? The force of friction always act in the direction opposed to the body is moving. बिल्कुल सही है वही चीज. जब बॉडी मूव कर रही हो तो जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी उस डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा. ये डायनेमिक फ्रिक्शन का लॉ है. तो वही हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन का था कि जब बॉडी आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वुड बी एब्सेंट हो जाता है जब बॉडी मूव नहीं करेगी, रेस्ट है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स. तो यहां पर भी है, जब बॉडी मूव कर रही होगी तो उसके अपोजिट एक फोर्स लग रहा है जिसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, वो ऑलवेज एक्ट करेगा. दिस इज द फर्स्ट लॉ. द सेकेंड वन इज द लॉ, सेकेंड इज दैट कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन बियर अ कांस्टेंट रेशियो ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड टू सरफेसेस. वो एक रेशियो नॉन लिमिटिंग फोर्स जो एक फ्रिक्शन का है और नॉर्मल रिएक्शन का जो होगा वो एक कांस्टेंट बियर करेगा, और उस कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगी. दिस इज द ऑलवेज. एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिमेन कांस्टेंट फॉर मॉडरेट स्पीड, बट इट्स डिक्रीज स्लाइटली व्हेन द इंक्रीज ऑफ द स्पीड. जैसे जैसे आपकी स्पीड इंक्रीज कर जाती है वैसे वैसे फ्रिक्शन आपका
कम होने, जैसे ही आपकी स्पीड कम है तो फ्रिक्शन आपका क्या है, ज्यादा लगेगा। तो इट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द फ्रिक्शन व्हेन द बॉडी इज इन अ डायनेमिक मोशन। सो दिस इज द लॉ। फर्स्ट वाला, जब बॉडी मूव करेगी तो इसका फ्रिक्शन अपोज करेगा। जब बॉडी आपका धीरे चल रही होगी तो वहां फ्रिक्शन ज्यादा होगा। जब बॉडी आपकी ज्यादा तेज रोटेट करने लगे वहां का फ्रिक्शन कम हो जाएगा। एंड द सेकंड वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू होगी वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगी। दिस इज द लॉ ऑफ द डायनेमिक फ्रिक्शन। हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑफ द फ्रिक्शन प्रॉब्लम। देखिए एक बॉडी है जिसका वेट 300 न्यूटन है, इज लाइन ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब यहाँ पे सरफेस जो है वो रफ है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, वो ज्यादा होगा। हैविंग अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.3। देखिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये म्यू की वैल्यू है। तो देखिए जो हमें दिया है मैं उसको सॉल्व कर लेता हूं। मुझे क्या दिया हुआ है बेटा, मुझे देखिए जिस क्वेश्चन एक बॉडी है जिसका वेट, आप क्वेश्चन बनाने की प्रॉब्लम करिए क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, तो आप कोशिश करिए कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो एक बॉडी है जिस रफ कर रहा है, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है। तो रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसी को रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। मान लीजिए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन होता तब भी फिगर यही बनता, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू वहां पे डिफरेंट होती। हैव अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.3। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स which can move the body while acting at an angle 25 डिग्री। आपको उस फोर्स की वैल्यू बतानी है जो बॉडी को मूव कर दे, मतलब आपको P की वैल्यू बतानी है जो बॉडी को मूव कर दे जब वो फोर्स कितने पे लग रहा है, 25 डिग्री पे लग रहा है। तो जब बॉडी आपकी मूव होना है तो आप कैसे, हाउ टू सॉल्व द, हाउ टू फाइंड द वैल्यू। देखिए जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो मैंने क्या कहा था आपको, मैंने जो फर्स्ट यूनिट पढ़ाई है उसमें मैंने आपको बेसिकली ये सब चीजें बताई हैं। तो आप देखिए आपको बस दो चीजें न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड वर्टिकल फोर्स। देखिए यहां पे पहले इस डायग्राम को मैं यहीं खत्म कर देता हूं। कैसे, ये फोर्स कैसे किसी एंगल पे लग रहा है, एंगल पे लग रहा है तो 25 डिग्री पे लग रहा है। और जो स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हैं उनको मालूम है कि आपको मालूम है ये एंगल किसी ये फोर्स किसी एंगल पे लग रहा है तो इसके दो भाई होंगे और एरो एरो की तरफ जाता है, एक एरो ये आएगा और एक एरो बाबू ये जाएगा। तो आपको मालूम है इसके दो भाई, एक कौन सा भाई, P cos 25 डिग्री और एक इसका P sin 25 डिग्री। देखिए पहला काम आप कर लीजिए तुरंत, जैसे ही आपको ये लगे कि फोर्स आपका किसी एंगल पे दिया हुआ है, मान लो ये किसी एंगल पे ना दिया होता तो क्या कंपोनेंट करते, नहीं करते, एंगल पे दिया इसलिए कंपोनेंट लगाया। तो आपको बस ये याद रखना है जब आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स ही बस बैलेंस करने हैं। तो देखिए इसके दो फोर्स आए, एक P sin 25 डिग्री एंड एक P cos 25 डिग्री। अब देखिए जब ये फोर्स P लगेगा 45 पे तो क्या बॉडी आगे जाएगी या पीछे जाएगी, बॉडी आगे जाएगी। जब बॉडी आगे जाएगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे, इसीलिए देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे की तरफ एरो है। चलिए सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करते हैं तो हमें बस ध्यान ये रखना है हॉरिजॉन्टल फोर्स, या अब आपको ये याद रखना है हॉरिजॉन्टल फोर्स जो इधर जा रहे हैं वो प्लस और जो इधर जा रहे हैं वो माइनस, और जो वर्टिकल फोर्स ऊपर जा रहे हैं वो प्लस और जो नीचे जा रहे हैं वर्टिकल फोर्स वो आपका माइनस। अब देखिए आपका कौन कौन सा हॉरिजॉन्टल फोर्स जा रहा है, वो आपका जा रहा है एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आपका P cos 25। ये P cos 25 कौन सा होगा, प्लस का होगा ना। तो P cos 25 एक प्लस का हॉरिजॉन्टल फोर्स जा रहा है और दूसरा क्या जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स जा रहा है। तो पहली इक्वेशन हॉरिजॉन्टल की क्या बनेगी, रिजॉल्विंग द फोर्स हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टल की क्या बनेगी, P cos 25 डिग्री कौन सा, प्लस का, और F इधर आ रहा है तो ये माइनस का F हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। हमें इक्विलिब्रियम सामान्य अवस्था में ले जानी है बॉडी, तो ये रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। तो हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो F क्या है, माइनस का, P cos पॉजिटिव का, तो ये इक्वल टू 0। तो देखिएगा P की वैल्यू नहीं मालूम, क्या फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मालूम है, नहीं मालूम है। तो फिर लेकिन फ्रिक्शन फोर्स को आप देखिए इसको इक्वेशन क्या मान ले, 1 मान ले। अब वर्टिकल फोर्स लगाते हैं, वर्टिकल फोर्स लगाते हैं तो वेट नीचे आ रहा है और P ऊपर जा रहा है, तो वेट नीचे आ रहा है तो वेट 300 और P sin, तो वेट नीचे आ रहा है माइनस का और P ऊपर का, तो माइनस का ये और आपने रख दिया इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या बनेगी, W इज इक्वल टू P sin
25 डिग्री। तो आप देखिए यहां से इक्वेशन निकल आएगी।